We are firmly into the knockouts now of the Vijay Hazare Trophy 2024-25. Karnataka versus Baroda, the home team taking the semi-finalists from last year. And it's Baroda who won the toss. These are the two lineups. Looking at the combinations, available resources for the team Baroda, 121 innings, 5,578 runs, averaging 50. And at the other end, Devdutt Padikkal, 1,875 runs in 30 innings in this list A career. Lukman Meriwala will be starting off proceedings for Baroda. Good delivery right on the channel. Nicely timed. Man in form picks up a boundary to open his account. That's a good shot. Full lofted drive. One bounce and ball trickles into the fence for 4. Pulled behind square. Finds a boundary. Takes full advantage. Down the track. AG straight to third. He's caught on the boundary. Agarwal is gone. He's gone for 6. A scratchy innings from Agarwal comes to an end. Meriwala strikes for Baroda. Mayank Agarwal 6 run बनाकर out. 30 पर 1 कर्नाटका. KV Anish comes to the crease, averaging 58, 3 half centuries to his credit. और ये 5वां चौका रहेगा. ये काफी देर से इंतजार कर रहे थे. इस बार बनेगी गुंजाइश. सिंगल की 4 की बनेगी. डीप में फील्डर थे लेकिन प्रयास किया, कामयाब हुए नहीं. लंबे इंतजार के बाद 21 गेंदों बाद ये बाउंड्री आई है. पहला छक्का कर्नाटक की तरफ से आता हुआ. आगे आए कदमों का इस्तेमाल पाडिक्कल द्वारा. Down the track, getting it fine up in the circle. He picks up yet another boundary. Back-to-back boundaries from the blade of Padikkal. In the air. Nicely worked away on the onside. It's a half century for Anish. 50 of 60 deliveries. A fine 5.5 century. It's been applauded by teammates sitting in the dugout as well. A crucial half century from the blade of Anish to provide the stability. Stroke beautifully. Lofted stroke straight to the fielder. He was brought into the attack with the prospect of getting a wicket, and Limbani has broken through. Partnership broken now. Anish the better out. अनीश 52 रन बनाकर जा रहे हैं. 163 पे 2. स्मरण क्रूशियल बैटर. पाडिक्कल 95 गेंदें, 99 रन. इंतजार है तालियों की गड़गड़ाहट का. जी आएगी जरूर. और डायरेक्ट लगती तो अरमान दिल में ही रहे थे, लेकिन यहां हो गया शतक पूरा. और मैदान पर अच्छी खासी दर्शकों की संख्या. ये शतक का भरपूर तालियों के साथ अभिवादन किया. ड्रेसिंग रूम कर्नाटक का सभी खिलाड़ियों ने खड़े होकर उनके शतक का अभिवादन किया है. Top edge. Wicketkeeper calls for it. And he has hung on to it. Limbani breaking through once again. It's a Centurion. Padikkal who departs for 102. A timely wicket for Baroda to celebrate. Centurion departs for 102. 172 for 3. Wonderful stroke off the back foot. Age is found. Third up in the circle. Should run away to the fence for 4. Oh, he's completely missed that one. Was there an inside edge as well? That was coming in. इस बार ठीक बॉलर के ऊपर से. इस बार मौका नहीं था पांड्या के पास. और चेतन इसके बाद ये भी है ना, ये पावर प्ले में फिर एक अतिरिक्त फील्डर आपको बाहर मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा पहले गेंद बाहर भेज दूं मैं. Takes the aerial route, goes downtown.
One bounce and that will be 4. खत्म, ये लीजिए, ये लीजिए। मैच रन गति बढ़ाना चाह रहे थे और लिम्बानी को मिली है सफलता। ये एक और समरन को उन्होंने साफ बोल्ड कर दिया। बिना गेंद की लाइन में बड़ा हिट करना चाहते थे, रन गति बढ़ाना चाहते थे, लेकिन रन गति तो बढ़ी नहीं। Smaran gone for 28. It's 221 for 4. अभिनव मनोहर 11 पारी 282 टोटल जमा पूंजी, 2 अर्धशतक हैं, 91 सर्वश्रेष्ठ। हवा में सीधा फील्डर के पास और यहां पर एक और विकेट। मेरीवाला के हाथ में एक और कैच आया और कोई गलती नहीं। Srijit goes for 28, 2 to 6'5". Hardik Raj into his second innings, 27 runs so far. Magnificent delivery, drawing the batter forward. And the decision has been referred to the third umpire. The ball is fairly collected. Yeah, next frame, next frame. Yes, you can freeze it here. जिस विकेट की तलाश थी कृणाल पांड्या के खाते में, वो विकेट आ गई है। कोई रन नहीं बनाया है, केवल 2 गेंदों का सामना किया है। 227 पे 6। Suresh Gopal averaging 27, 4 half centuries to his credit. Pulled majestically into the gap for 4. Smacked it down the ground. Handsome striking. Driven it straight down the ground. He has drilled it for 4. Full toss. Smacked it, belt it down the ground for 6. Lofted it, not in control. It's caught on the boundary. Atit has got his second wicket. It's a Shreyas Gopal who is out for 16. इनाम मिला है और इनाम के हकदार भी हैं अतीत। श्रेयस गोपाल होकर जा रहे हैं, 16 रन बनाए हैं उन्होंने, 253 पे 7। Prashit Krishna comes to the crease, best of 9 runs in list cricket. यहां पर फिर से एक बार गेंद हवा में और इस बार बड़ा शॉट। Shot straight down the ground. That is a humongous hit. लो फुल टॉस, यहां पर सीधा हाथ में, बढ़िया कैच और एक और विकेट यहां पर। राज लिम्बानी ही, चोट तो उन्हें नहीं लगी है। So Manohar departs for 21, 273 for 8 Karnataka. Abhilash Shetty at the age of 26. He's found the gap and he's found the boundary as well. He's taken the single, he's coming back for the second. That's brilliant. That's good running between the wickets. 2 runs of the last delivery of the first innings. अच्छी गेंदबाजी रही और कर्नाटका की पारी 281 पे 8 पे ही सिमट गई। Baroda need 282. शाश्वत रावत 14 पारी में 423 रन है। निनाद राठवा भी जाने जाते हैं, 136 सर्वश्रेष्ठ है, 1 शतक है इनका। वासुकी कौशिक 42 मैच में 77 विकेट हैं। Straight away getting the ball to bounce. ये बाउंड्री मिल जाएगी। यहां पर खराब लाइन। It's found just away from the slip fielder, down to third for 4. Lucky boundary. क्लॉक होल के अंदर आते ही सफलता दिला दी। पहली गेंद पर ड्राइव करना चाहते थे, लगभग ओवर पिच गेंद थी। Keep it rolling. Yes, next frame, next frame, next frame, next frame. I can see the fingers are underneath the ball. Next frame. Yeah, satisfied. It's a fair catch. अभी सेठ आए हैं नए बल्लेबाज। Back of length again. Pulled away. This time the fielder will not be able to cut it off. Again erring in line. Flicked off his pass. That will be a boundary to finish off the over. Drives handsomely. Wants a run. Will get there. Half century for Shashwat. 50 of 62. A good composed innings to keep Baroda in the hunt. You can expect applause from his teammates. Calculated अर्धशतक कहेंगे हम यहाँ पर।
हवा में ये गेंद स्वीप करने की कोशिश और फील्डर ने छोड़ दी है ये कैच। प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों से छूटा ये मौका। Glorious stroke. That is an outrageous shot for 6. Remarkable ball striking from Seth. And he raises his half century as well. 54 of 56. And what a way to get to your half century. It's been an entertaining innings from Seth already. ये काम हो गया, ये काम हो गया। मैं कह ही रहा था आपसे, ये ऐसे गेंदबाज हैं जो कभी भी दिक्कत पैदा कर देंगे और दिक्कत पैदा कर दी। सेठ जिन्होंने अभी अभी अर्धशतक पूरा कराया, आगे निकलकर डबल बाइंड हो गए थे। गेंद को शॉट खेलें या रोकें। अतीत सेठ 56 रन बनाए, 130 2 विकेट पे बरौटा। Krunal Pandya, a tough combative captain of the side. ट्राई किया था लेकिन इस बार फायदा उठाया कृणाल पांड्या ने। फिर से स्वीप किया और एक और बाउंड्री। फिर से शॉर्ट गेंद और ये लीजिए एक और बड़ा शॉट। Edge and that's taken. We were talking about the wicket and that has come. Wide delivery, it was chased and what a catch. लंबा डाइव किया, शानदार प्रदर्शन किया। कृणाल पांड्या 30 रन बनाकर आउट हुए, 185 3 विकेट पर। New batter in, Vishnu Solanki. जोरदार अपील हो रही है, आउट दिया गया है, उंगली उठी है। क्या ये ले डीआरएस की तरफ गए? जी हाँ, डीआरएस ले लिया है। Rolling, flat line as the ball passes the glove and the bat. Satisfied, no bat involved. Pitching in line, impact in line, wickets hitting. Original decision is out. Can we go back to Abhijit? You're on screen. Vishnu Solanki is out. LBW for 1, 188 for 4. शिवालिक शर्मा 26 वर्षीय। Gorgeous. Glorious stroke straight down the ground, straight to the fielder. Mayank Agarwal is delighted. That is a sensational catch. शिवालिक शर्मा 5 रन बनाकर आउट, 201 पे 5। 28 वर्षीय भानु, 363 रन है। Good shot through the extra cover. Amazing stroke for 4. जहां गैप में खेला है और ये हुआ शतक। शानदार पारी, जानदार पारी, दमदार पारी शाश्वत की, जिन्होंने उम्मीद जगाए रखी है बड़ौदा की। एक अकेला खिलाड़ी संघर्ष करता हुआ एक छोर पर, और देखिए भारी संख्या में जो दर्शक आए हैं, जोरदार तालियों से उसके शतक का अभिनंदन कर रहे हैं। कुछ आतिशबाजी की आवाज भी आई है। Great moment. First century in this cricket for Shashwat. That's a humongous blow. That's gone the distance. That's gone for 6. A crowd catcher. फिर से धीमा गेंद और एक और बाउंड्री। Beautiful delivery. And it's given him out. He's gone, caught behind. Movement away, nicked through to the wicketkeeper. आनू पानिया 22 रन बनाए 26 गेंदों में। Raj Limbani. In the air, wicketkeeper settling underneath. He takes the catch. Prasidh Krishna has struck finally. Shashwat is dismissed for 104. It's 245 for 7. महेश पीथे आए हैं। Soft, simple राइट catch. खेलना चाहते थे और Mahesh Pithia contributes 1. Bhargav Bhatt. लीजिए, अभी हथियार डाले नहीं है। Swung away on the onside. Swung away, fielder diving forward. और ये प्रयास किया और Slow delivery. Slow delivery, run out opportunity. Short of the crease. 9 wickets down now. 12 to win from 4. Bhargav Bhatt run out for 15, 270 for 9. मेरे वाला आखिरी बल्लेबाज। शॉट तो खेला है लेकिन इन्हें सिंगल ही मिलेगा। ओह, ये तो मिडफील्ड हो गया। Will take a single. He's going back for the second. Opportunity for run out.
It's broken the stumps. Keep it rolling. Keep it rolling. Yeah. इस तरह से आखिरी विकेट रनआउट के रूप में और कर्नाटक ने एक बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला 5 रन से जीता है. 104 for Shashwat. 2 wickets for Shreyash Gopal, 2 for Kaushik. Karnataka through to the semi-finals. हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे. जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो में ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं, ऐसे लाइंस वाक्य पढ़ते हैं और सुनते हैं जिससे कि हमको मन को शांति मिले, हम अध्यात्म को अच्छे से जान पाए, आत्मा के बारे में जान पाए, अपनी असली खुशी को बारे में जान पाए. जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी तरह से परेशान है और एक आंतरिक जो खुशी है वो ढूंढ नहीं पाता है. और आजकल जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी जगह लोग जाते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, जिससे कि उनको इनर जो आंतरिक खुशी है वो मिल पाए, लेकिन वो मिल नहीं पाती है क्योंकि आजकल अध्यात्म भी एक धंधा बन चुका है. इसलिए लोग ठगे जाते हैं, लोगों के विश्वास, लोगों का जो परेशानी है उसका लाभ उठाकर अपना पार्टी भरा जाता है. तो इसलिए मैं आपके सामने ऐसे तथ्यों को सामने रखता हूँ, ऐसी कहानियाँ लाता हूँ, ऐसे कथन जो कि बोले जा चुके हैं हमारे महापुरुषों के द्वारा, उनको मैं आपके सामने लाता हूँ ताकि उन सभी बातों को आप फॉलो करें और फॉलो कर सिर्फ आप धर्म को नहीं, अब एक इंसानियत को अपने अंदर जागृत करें. और यही मेरा मकसद है कि आप हर इंसान अध्यात्म की ओर आगे बढ़े, किसी पे डिपेंडेंट ना होकर खुद सेल्फ मेडिटेशन करें, खुद को जाने, खुद की आंतरिक खुशी को पहचाने. यही मेरा मकसद है. तो चलिए शुरू करते हैं. अंधविश्वास को पहचाने. मेरा पहला आपका कथन है, हम में से बहुतों के पास भारतीय सभ्यता के हास्य के लिए अपने अपने चुने हुए स्पष्टीकरण है. देशभक्त हमारे अधपतन के लिए विदेशी आक्रमण की तबाही और उसके शासन के जड़कारी प्रभाव को जिम्मेदार ठहराता है. यूरोपीय भौतिकवाद का अनुयायी हमारे धर्म और उनकी कलातीत सामाजिक आत्माभिव्यक्ति में हमारी सारी बुराइयों का स्रोत खोज निकाला है. ऐसे स्पष्टीकरणों में अधिकांश मानव विचारों की भांति उसके सत्य का उजला पक्ष होता है और मिथ्या का धुंधला पक्ष भी. वे निष्पक्ष विचार का परिणाम नहीं होता है. जैसा कि यह परिभाषित किया गया है, मनुष्य एक तर्कशील प्राणी हो सकता है, किंतु यह जोड़ना आवश्यक है कि अधिकांश वह बहुत खराब तर्क करने वाला प्राणी है. वह सत्य का पता लगाने के लिए विचार नहीं करता, बल्कि अपनी मानसिक प्राथमिकताओं और भावनात्मक प्रवृत्तियों की तुष्टि के लिए सोचता है. उसके निष्कर्ष उसकी प्राथमिकताओं, पूर्वग्रहों और मनोभावों से निकलते हैं और उसकी युक्तियाँ और तर्क केवल एक दिखावटी प्रक्रिया होते हैं या उसके हृदय या स्वभाव द्वारा पहले ही उभारे गए मनोभाव के प्रति उसके प्रच्छन्न पक्षपात के लिए एक औपचारिक मुखौटा होते हैं. जब हम अपनी आधुनिक भ्रांतियों से जागेंगे, जैसे हम अपने मध्यकालीन अंधविश्वासों से जगाए गए हैं, तो पाएंगे कि तर्क बुद्धिवादी के बौद्धिक निष्कर्ष उसकी सारी तड़क भड़क और अति सतर्क छानबीन के विरोध के बावजूद उतने ही हम हठधर्मी थे जितने कि पोप और धर्मशास्त्री के पहले दिए गए फतवे, जिन्होंने तर्क के विपरीत अपने साधारण आधार को स्वीकार किया. इसलिए यह हमेशा उत्तम रहता है कि उन खुले और मर्मभेदी स्पष्टीकरणों की अत्यंत बारीकी से छानबीन की जाए, जो हमारी बुद्धि के अंदर बैठे हुए लड़ाके पशु को इतनी सरलता से संतुष्ट कर देते हैं. इतने तामसी निष्क्रियता से भरपूर कम ही समझ रहे हैं
जैसा बाद के समय में भारतीय समाज रहा है। इसलिए कम ही समाज में प्रमाण को इतनी अधिक महत्ता दी गई। हमारे जीवन की छोटी छोटी बात भी शास्त्र और प्रथा ही निश्चय करते हैं। हमारे विचारधारा का हर ब्यौरा धर्मशास्त्र और उसके टीकाकार तय करते हैं। अधिकतर तो टीकाकारों को द्वारा यह भी किया जाता है, केवल एक क्षेत्र व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभूति के क्षेत्र में हमने प्राचीन स्वतंत्रता और मौलिकता का पोषण किया, जिससे हमारी अतीत की महानता उत्पन्न हुई। इसी अनंत स्रोत में होने वाली नवीन हलचल से हर ताजे सपदन और नवजीवित शक्ति ने जन्म लिया है। अन्यथा हमें भी यूनान और सीजरों की रोम के साथ उन कब्रों में पड़े लंबा समय गुजर गया होता है जहां मरे हुए राष्ट्र पड़े हैं। चलिए दूसरे विचारों की ओर बढ़ते हैं। प्रेम ही सच्ची प्रार्थना। ईसा गुजर रहे थे एक गांव से। उन्होंने राह के किनारे दीवार के सहारे बैठे कुछ अत्यंत दुखी लोगों को देखा। ऐसे थे वे संतापग्रस्त, जैसे मौत उसके सामने हो। भय से कंपित, भय से पीले हुए, मरणासन। ईसा ने पूछा, यह हालत कैसे हुई तुम्हारी? उन्होंने कहा, नरक के भय के कारण। और थोड़ा आगे बढ़ने पर ईसा ने फिर कुछ लोगों को वैसे ही स्थिति में देखा। आंखें उनकी पथरा गई थी और भिन्न भिन्न आसनों और मुद्राओं में ऐसे बैठे थे जैसे मर ही गए हो। ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या दुख है? वे बोले, स्वर्ग की आकांक्षा। और थोड़ा आगे बढ़ने पर ईसा ने कुछ लोगों को वृक्ष की छाया में नाचते हुए देखा। आनंदमग्न, भाव विमोर, न जाने कौन सा खजाना मिल गया था उन्हें। न मालूम कि किस नरक से बच गए थे या कौन सा स्वर्ग का द्वार खुल गया था उनके लिए। उन सब के चेहरे पर लंबी यात्रा के चिन्ह तो थे, लेकिन थकान नहीं थी, वरन उपलब्धि का विश्राम था। उनकी आंखों में तपश्चर्या का सौंदर्य था, लेकिन अहंकार की कोई भी रेखा न थी। उनकी आत्माओं में आनंद की वर्षा हो रही थी और उसके चारों ओर किसी अलौकिक प्रकाश का आभा मंडल था। ईसा ने उनसे पूछा, मित्रों, तुम्हारे इस अपूर्व आनंद का राज क्या है? तुम्हारी इस प्रशंसा का रहस्य क्या है? वे बोले, आकांक्षा नहीं सुख की, भय नहीं दुख का, चाह नहीं स्वर्ग की, चिंता नहीं नरक की। और जब से चाह और चिंता छुटी है, तभी से जो है उसे ही जानकर और पाकर हम आनंदित और अनुगृहित हैं। ईसा ने कहा, यही वे लोग हैं जो सत्य को उपलब्ध होते हैं। यही वे लोग हैं जो सदा ही प्रभु की उपस्थिति में जीते हैं। प्रभु से उनके समस्त रूपों में प्रेम ही प्रार्थना है। जहाँ देखो उसे ही देखो, जहाँ सुनो उसे ही सुनो। फिर जीवन जीना उत्सव हो जाता है। जीवन को गंभीरता से लिया तो कठिनाई में पड़ जाएंगे। जीवन एक खेल है। यदि इस बात को सदा स्मरण रखें तो फिर और कुछ स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो बुरा करे उसके प्रति भी मन में करुणा रखना और उसके प्रति अनुग्रह का भाव भी रखना, क्योंकि वे तुम्हारे करुणा का अवसर देते हैं। याद रखो, साधना के मार्ग पर सभी मित्र हैं, वे भी जो ऊपर से शत्रु जैसे मालूम होते हैं। इस बात की गांठ मान लो, कल तुम नहीं थे और कल तुम नहीं होंगे। इसलिए आज ही तुम्हारा जीवन है। इसे आज ही जियो, गहराई में, समग्रता में। प्रतिपल जियो। प्रतिपल अतीत से बाहर होते रहो। प्रतिपल से ज़्यादा जीवन नहीं है। और ये कहा है ओशो ने। बहुत ही सुंदर बात कही है कि प्रेम ही सच्चा प्रार्थना है और आज में ही जीना चाहिए। कल क्या था, कल क्या होगा, इससे आप सोचकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अतीत में ना जीकर या फिर भविष्य में ना जीकर आज में जीजिए। आज में अपना जीवन बिताइए। जो है उसी में सुखी रहिए
और ज़्यादा की कामना मत करिए। चलिए हम बढ़ते अपने अगले लेख की तरफ। हमारा अगला लेख है नया मनुष्य कैसे पैदा होगा। चलिए साल तो नया हो गया, लेकिन मनुष्य वह कैसा है, नया है या पुराना। ओशो का पूरा दर्शन और कार्य नए मनुष्य के जन्म के लिए है। वह कहते हैं नए मनुष्य में मानवता का पूरा भविष्य समाया हुआ है। सवाल यह है यह नया मनुष्य कौन होगा और कहाँ से आएगा। यह हमारे भीतर ही आएगा, लेकिन हम जैसे हैं वैसे नहीं रह सकते, हमें बदलना होगा। उन्होंने बहुत साफ बिंदु दिए कि नए मनुष्य की पहचान क्या होगी। आदमी सुखी हो सकता है अगर जो उसे मिल रहा है उसे वह पूरे अनुग्रह से स्वीकार कर ले। अनुग्रह का भाव अंकुरित होता है हृदय में, लेकिन हृदय का द्वार सबका बंद पड़ा होता है। हमारी शिक्षा में, संस्कृति में, परवरिश में कहीं भी हृदय को विकसित करना सिखाया नहीं जाता। जरा सोचें, जो मिला है वह कितना अपूर्व है। इतनी सुंदर प्रकृति, रोज उगता नया सूरज, रात में निकलते चांद तारे, सुफला सुजला धरती, क्या इनके हम हकदार हैं। प्रतिपल अनुग्रह से जीना सीखो तो सुख ही सुख है। सुख कोई बाहर किसी बैंक में रखा निवेश नहीं है, वह हर पल आपकी संवेदना में है। अगर नया मनुष्य पैदा करना है तो हमें क्षण में सुख लेने की क्षमता और क्षण के प्रति आदर और अनुग्रह सीखना पड़ेगा। दूसरे, आज भी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि लोग धार्मिकता को समझें। जिसे लोग धर्म समझते हैं वे धर्म नहीं, वे चट्टाने हैं। धार्मिकता तो एक बहती हुई सरिता है जो पग पग पर मोड़ लेगी, निरंतर अपने मार्ग बदलेगी, लेकिन अंततः सागर तक पहुंचती है। धार्मिकता हृदय की खिलावट है, वह तो अपनी आत्मा, अपनी ही सत्ता के केंद्र बिंदु तक पहुंचने का नाम है। ध्यान रहे, आदमी किसी धर्म में पैदा नहीं होता, धर्म आदमी के भीतर पैदा होता है। धर्म की परिभाषा भगवान महावीर ने की है, वस्तु स्वभाव धर्म। हर वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। जैसे पानी का धर्म है नीचे की ओर बहना, भाप का धर्म है हवा में उड़ना, अग्नि का धर्म है गर्मी पैदा करना, माटी का धर्म है स्थिर रहना। मनुष्य भी निसर्ग का हिस्सा है, उससे अपना धर्म ढूंढना जरूरी है। काश पूरी धरती पर धार्मिकता फैल सकती तो सारे धर्म विदा हो जाते। यह मनुष्य जाति के लिए एक महान वरदान होगा। जब मनुष्य केवल मनुष्य होगा, न ईसाई, न मुस्लिम, न हिंदू। जब तक धार्मिकता ही हवा पैदा नहीं होती तब तक वास्तविक धर्म और अखंड मनुष्य पैदा नहीं हो सकता। अखंडित मनुष्य अपने आप में पूर्ण है, उसकी पूर्णता ही उसकी पवित्रता है। वह इतना परितृप्त है कि फिर उसे दूर कहीं स्वर्ग में बैठे उसकी देखभाल करने वाले किसी ईश्वर की मानसिक जरूरत नहीं रह जाती है। और ये कहा है अमृत साधना ने, बहुत ही खूब कहा है। जब तक धार्मिकता की हवा पैदा नहीं होती तब तक वास्तविक धर्म और अखंड मनुष्य पैदा नहीं हो सकते। अखंडित मनुष्य अपने आप में पूर्ण है, उसकी पूर्णता है उसकी पवित्रता है। तो ये सब बातें आपको कैसी लगी और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कर बताना ना भूलें। और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।